Today we will start coordination compounds or complex compounds. Firstly we will discuss about the addition compound and molecular compounds. Addition name से ही clear हो रहा है when two or more simple salts added then addition compound is formed. What happened? Let's suppose A and B. There are two simple salts and when they are heated their vapors are collected in a separate container and when cooled down it gives out addition compound. This is now AB. It is addition compound. Now addition compound can be classified into further two categories, double salts and the complex compounds. What is difference between the double salts and complex compounds? Generally ये question पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में. डबल सॉल्ट्स का मतलब देखने में तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़ में और अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं. ये बनते कैसे हैं डबल सॉल्ट्स? डबल सॉल्ट्स कंटेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर रेशियो. इक्विमोलर रेशियो मीन्स इक्वल रेशियो में होते हैं. तो डबल सॉल्ट्स क्या हुआ? इक्वली यूजुअली कंटेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर रेशियो. फर्स्ट पॉइंट, exist in solid state, on dissolution dissociate into constituent species, that is they lost their identity. आप लोगों ने पोटाश एलम का नेम सुना होगा, टाइट्रेशन के ड्यूरेशन में FAS का नेम सुना है. ये सभी डबल सॉल्ट्स हैं. देखिए बताते हैं कि कैसे डबल सॉल्ट्स की तरह एक्ट करते हैं. FAS FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4 dot 6H2O. When they are dissolved in water, they dissociate completely and give ion. Ferrous ion, Fe2 positive, ammonium ion, NH4 positive, and sulfate ion, SO4 2 negative. It means after dissolution, they give the test for ferrous, for ammonium, for sulfate, for all. इन सबके डिफरेंट टेस्ट हमें मिलेंगे. आइडेंटिफाई टेस्ट हम कर सकते हैं. ऐसे ही पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. On dissolution in water, it gives out potassium ion, aluminium ion, sulfate ion. It means it will give test for all potassium, aluminium and sulfate ions. It is double salt. Double salts equimolar ratio, they are formed by the equimolar ratio of the simple salts like ferrous sulfate and ammonium sulfate. It gives out FAS. Potassium sulfate, aluminium sulfate, it gives out potash alum. When they dissolved in water, they give all the constituent ions. It means they can give all the tests for their constituent ions and they lost their identity. Such type of salts are known as double salts. Now we talk about the complex compound. What is difference between the double salts and the complex compound? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी एडिशन कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी ऑल्सो. द एडिशन कंपाउंड in which some of the constituent ions or molecule lost its identity. सिर्फ कुछ ही आयंस हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं in dissolved state and do not break completely, और completely break नहीं होते. इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. देखिए लेट्स सपोज फेरस साइनाइड FeCN होल ट्वाइस एंड KCN, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है. अगर डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो ये डबल सॉल्ट कुछ इस टाइप से बनेगा. इट इज़ डबल सॉल्ट. और ये बन सकता है कुछ इस तरह से K4FeCN होल 6, दिस वन. अब ये जो डबल सॉल्ट बना है FeCN होल ट्वाइस डॉट 4KCN, it give test for the ferrous ion, it will give test for potassium ion, it will give test for the cyanide ion, all. बट होता क्या है, इट डिसोशिएट इनटू K पॉजिटिव एंड FeCN होल 6 4 नेगेटिव. पोटाशियम आयन का तो टेस्ट मिलता है लेकिन फेरस आयन का और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं मिलता. तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जब इन दो सिंपल सॉल्ट्स के एडिशन से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हुआ और सभी आयंस अपने
पर्टिकुलर टेस्ट ना दें, इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स. इट मीन्स इट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है. जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर के आयंस है, काउंटर आयन, सिर्फ वही आयनाइज हुआ है. इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एटम या फिर स्पीशीज़ हैं वो आयनाइज नहीं हो रही हैं और ना ही अपने पर्टिकुलर टेस्ट वो दे रही हैं. तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ आयन. मतलब सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है. जैसे अभी एग्जांपल लिया KFeCN6. जब भी कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है फर्स्टली हम कैटायन मेंशन करते हैं और बाद में एनायन. दिस पार्ट इज कैटायन एंड दिस पार्ट इज एनायन. जब ये आयनाइज होता है इट गिव्स आउट K पॉजिटिव and FeCN6 4 negative. It means cation is simple but anion is complex. तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन. अब दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस, इसी बेसिस पर अ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन. मतलब अब कॉम्प्लेक्स हो कैटायन CuNH3 होल 4 एंड SO4, इसे ले लेते हैं. यहाँ पर ये वाला पार्ट एनायन है और ये वाला पार्ट कैटायन है. नाउ कैटायन इज कॉम्प्लेक्स एंड एनायन इज सिंपल. कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन हम ऐसा भी ले सकते हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स ही एनायन हो. लाइक CONH3 होल 6 COCN whole 6. In this case, this is cation, it is positively charged, and this complex, this is anion, it is negatively charged. Both are complexes. Cation and anion both are complexes. Neutral molecule, it means molecule जिसमें कोई भी चार्ज ना हो. Like this. Like this. All those which do not have any charge known as neutral molecule. तो इस बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्सेस को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ आयन. अब दूसरा क्लासिफिकेशन का बेस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसे हम उसके बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. हम दो टाइप से बोल सकते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमो मीन्स सेम. जहाँ पर मेटल एक ही टाइप के लिगेंड से बॉन्डेड हो उसे बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. लाइक अभी जैसे हमने एग्जाम्पल किया था FeCN होल 6 4 नेगेटिव. यहाँ मेटल Fe एक ही टाइप के लिगेंड से बॉन्डेड है तो हमने इसे क्या बोला? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं NiNH3 whole 6 anyone in which metal is bonded with one type of ligand known as homoleptic complexes. Hetero अब क्लियर हो गया होगा. In which metal is bonded with more than one type of ligands, it is known as heteroleptic complexes like CONH3 whole thrice Cl3. In this cobalt is bonded with two types of ligand, ammonium और क्लोराइड. तो यहाँ पर दो टाइप के लिगेंड से बॉन्डेड है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक प्लेटिनम NH3 whole twice ClNO2 like this. In this case platinum is bonded with NH3 ClNO2, three types of ligands, so it is further example of heteroleptic complexes. Means all those complexes in which metal is bonded with only one type of ligand known as homoleptic complex, and when metal is bonded with more than one type of ligand known as heteroleptic complex. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं ये बार बार बोल रही हूँ लिगेंड्स. ये लिगेंड्स होते क्या हैं? सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कॉम्प्लेक्स स्फेयर, ये जो कोऑर्डिनेशन, ये जो मैंने अभी बोला स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये सब क्या हैं? अब इनके बारे में पहले टर्म्स जान लेते हैं. टर्म्स जानने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहला टर्म सेंट्रल मेटल एटम आयन एंड लिगेंड. सेंट्रल मेटल वो हुआ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगेंड से बाय कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. अब जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बॉन्डिंग होगी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. तो मेटल में
वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं जिनमें लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए डोनेट करता है, ठीक है। तो डोनर एटम, मॉलिक्यूल और एनायन, मतलब डोनर एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं, विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम, जो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नोन एज लिगेंड्स। हम उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। लिगेंड्स क्या हुआ? वो सभी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या हुआ? वो सभी एटम या आयंस जो लिगेंड्स से अटैच हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। मेटल एटम और आयन to which these ligands are attached known as central metal atom और ion। फर्दर मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ FeCN होल 6 4 नेगेटिव का। इन दिस केस Fe इज सेंट्रल मेटल आयन एंड दीज आर लिगेंड्स। CN नेगेटिव होगा यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, दिस इज लिगेंड्स। अब ये क्या हो रहा है? CN क्या कर रहा है? CN टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, इट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द Fe सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन और दिस वन इज लिगेंड। ओके, नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब जो लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देख करके नहीं पता लगेगा ऐसे, जैसे मैंने बोला कि FeCN होल 6 4 नेगेटिव। अब ज़्यादातर क्या होता है, जितने भी लिगेंड्स का नंबर होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर मान लिया जाता है। इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एग्जैक्टली, वो इसी के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये लिगेंड मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब दिस लिगेंड हैज़ ओनली वन डोनर एटम, पर अगर डोनर एटम मोर देन वन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, CrEN होल थ्राइस। इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना हो तो क्या हमें यहाँ पर लिगेंड्स का नंबर 3 नजर आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3? No, it is not 3. Why not? Because each En can donate 2 lone pair of electron for the coordinate bonding. इसका मतलब यहाँ से एक En के थ्रू कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो 3En के थ्रू कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? डेफिनेटली 6 का होगा। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इट इज़ इथाइलिन डायअमाइन, उसका एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो इसके थ्रू ये डाइडेंटेट लिगेंड है। इट मीन्स इट डोनेट 2 donor atoms, मतलब it has 2 donor atoms which can form coordinate bond with the central metal atom or ion. So each En has 2 donor atom, 3 En will have 6 donor atom. It means total 6 coordinate bond will be formed. So coordination number is 6. इस तरह से ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर किस पर डिपेंड करता है? इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द लिगेंड्स, इट डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड। रिमेंबर दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, इट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? अभी हमने इस तरह से लिखा FeCN होल 6 4 नेगेटिव, दिस वन, ठीक है। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, है ना, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स लिखे हुए हैं, दीज आर डायरेक्टली coordinately bonded with each other. It means all the 6 CN will form coordinate bond with this Fe ion, आयरन आयन। तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि वो मेटल एटम और आयन और लिगेंड्स जो डायरेक्टली अटैच हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो सभी एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज हैं। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल and ligands which are directly attached to metal are enclosed in square bracket known as coordination sphere. Just like one more example, if I say NiCO whole 4, nickel is coordinately bonded with 4CO, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये मेटल और लिगेंड्स
इन सबको कहाँ इनक्लोज कर दिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट में. इट इंडिकेट स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. पॉलीहेड्रॉन का क्या मतलब है? इट शोज द स्पेशल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट. किसका 3D अरेंजमेंट? सेंट्रल मेटल एटम या आयन का और लिगेंड्स का. मतलब ये लिगेंड्स किस तरह से अरेंज है एक सेंट्रल मेटल के चारों तरफ 3D स्पेस में, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. स्पेशल 3D अरेंजमेंट of ligand which are directly attached to central metal atom ion known as coordination polyhedron. मतलब वो सभी ligands जो सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच हैं वो किस 3D स्पेशल अरेंजमेंट में है, उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. तो देखते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हो सकते हैं. देखिए, मेटल कैन बी बॉन्डेड विद लिगेंड्स, 4 लिगेंड्स इन दिस मैनर. अगर इस मैनर में अरेंज है तो आप इजीली बता सकते हो इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं. एग्जैक्टली, इट इज टेट्राहेड्रल मैनर. इफ मेटल एंड 4 लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे, इट इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर. If metal and ligands are arranged in such a way, देखिए it is trigon and this one is pyramid, bipyramid. It is known as trigonal bipyramidal, TBP, trigonal bipyramidal. If they are arranged, if 5 ligands are arranged in such a way, square with a pyramid like this, this is known as square pyramidal. If 6 ligands around a metal are arranged in such a way, this is octahedral manner. This one is octahedral manner. तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि लिगेंड्स एंड मेटल एटम्स किस मैनर में अरेंज हैं और उसी के बेसिस पर हम ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं. इट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. दिस वन, दिस स्पेशल अरेंजमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. नाउ अब लिखा हुआ है एक तरह से कॉम्प्लेक्स. हम कॉम्प्लेक्स में कैसे कैसे जान सकते हैं कि ये क्या है. दिस वन इज काउंटर आयन and these counter ion has tendency to ionize. It means these are ionizable and this is known as coordination sphere. हम इस पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ओके, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दिस इज a central metal and these are ligands. And 6, this indicate coordination number. ये हमें क्या इंडिकेट करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट करता है. मतलब एक कॉम्प्लेक्स को देख करके हम कितनी सारी चीज़ें बता सकते हैं कि उसमें काउंटर आयन कौन सा है, उसमें कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है या फिर एनायन है, सेंट्रल मेटल क्या है, लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. ये सभी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में जान करके. तो आज हमने बात किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्सेस जानने के बाद हमने क्लासिफिकेशन किया कि हम कॉम्प्लेक्स को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं. कुछ टर्म्स जानी. नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं लिगेंड्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स एंड हाउ कैन वी राइट फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्सेस.